अरे ये लोग बालिका वधू देखते हैं यहाँ पे, कैन यू बिलीव दैट? तो कल मैं इसी 7-Eleven के सामने आया था एंड इफ यू जस्ट टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर, अगर इस 7-Eleven से सीधा बाहर निकल के अगर मैं एक लेफ्ट लेता हूँ, सो इफ आई कम हियर, हाँ, सो सीधा इधर जाऊँगा तो आता है पेपर प्लेट पिज़्ज़ा। इधर में कुछ ज़्यादा ही आता है, आई शुड नॉट बी कमिंग इट टू ऑफ्टन, बट मैं पिज़्ज़ा खाने नहीं आता, आई कम फॉर द पास्ता एक्चुअली। दे हैव पेस्टो पास्ता विच मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक मैं लास्ट 4 दिन में एक बार तो आ ही रहा था टू हैव द पेस्टो सॉस पास्ता, सो इट्स राइट देयर। सुनील सलाम। Same thing. Okay. Yeah. So a little update. मुझे actually egg coffee जाना था, but instead of going to egg coffee, I found this coffee place. तो मैं अंदर चला आया and you know I found that they sell marshmallow jars of marshmallows, and they have I mean they do have coffee and you know other drinks. So this is a dark Thai cocoa beverage. What the hell? ये कुछ gelatin है, I don't know ये क्या है. And they gave it to me on a metal skewer, like it's kind of interesting. This is some kind of gelatin. It's really tasteless. But try करके दिखता हूँ कैसा है properly. Hey, that is a little interesting. It tastes a bit bitter, a bit like coffee, and it is sweet and chocolatey as well. So it essentially tastes like cake of some sort. मैंने ऐसा एक टाइप का केक खाया था कभी लाइफ में. It tastes a bit like a cake I had once. It tastes a bit artificial and it has that factory flavor, but chocolate factory flavor. It doesn't taste as organic. But I was just curious to try. This place by no means is like a cheap place. Terrible nahi hai. Let me just show you. I will switch to ultra wide. So this is the first floor. नीचे ground floor है, ऊपर second floor है. So by no means is this place like bad. Ambience अच्छा है. And उधर नीचे there's a table there. I'll get you guys closer. So वहाँ पे marshmallow का पूरा टेबल है. ऊपर जाओगे तो there's no seating space. And the most interesting thing is the balcony. चलो अगर ऊपर जाने के पहले एक बार पहले मैं टॉयलेट दिखा देता हूँ. This is a very 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 white toilet. Yeah, this is just literally हर चीज़ सफ़ेद है, you know, except for this. It's one of the most white toilets I've ever seen. ऊपर का balcony empty है. So yeah, it's a very narrow plot of land. तो बहुत narrow है. So
मैं इसका बात कर रहा था. It's what do you call this? It's just rocks. It's big rocks actually. And तुम्हें ASMR चाहिए तो I would have to get the mic close, but नीचे ही रोड है. I don't know if you would like to come here. अब तक तो मैंने मेन चीज़ which is the marshmallow मैंने वही ट्राई नहीं किया. And this is literally someone's house over there. There's this parapet and there's literally someone else's terrace over here. It's a little yeah, that's really strange. If you like small places, if you're like a cat who likes to get cozy in a corner, this cafe might be for you. It's quite literally marshmallows. Wow. Thank you. Didn't particularly interest me. If Majin Buu was a real thing, उसको ये दुकान बड़ा पसंद आता, I guess. So now I'm just walking towards the famous circle जो है सामने. आज lighting on है, so we'll just have a look. And by the way, there is cheese coffee right there. मैं जैसे इस ब्रांच में घुसा, I was not very impressed, but there is a bigger and better branch on Pasteur स्ट्रीट जो है वहाँ पे एक बेटर ब्रांच है. सो मैं उधर जाऊँगा कल. लकैफ भी बाजू में है, पास्टर स्ट्रीट भी, सॉरी वो पास्टर वाला ब्रांच भी उधर ही है. एंड देयर इज़ ऑल्सो वाईटी मसाज विच इज़ अ ग्रेट मसाज प्लेस, तो वो भी उधर है. सो देयर इज़ अ स्टारबक्स ओवर देयर. यहाँ के स्टारबक्स में मैं लिटरली कभी नहीं गया. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टारबक्स दे सेल हियर. Just down the road, the second left that you see, go down that road, you'll find Foot Locker. Skechers का दुकान है, Lacoste. वियतनाम में, especially in this city, luxury shopping करना है तो they do have a lot of stuff. And आगे जाके अभी आएगा egg coffee. Man, this selfie stick sucks ass. By the way, there's this massage shop which is behind me. पता नहीं क्यों देख के हंसते हैं मेरे को. It's kind of disrespectful. मैं उधर जाना ही बंद कर दिया ऐसा वैसा. मुझे kind of खुश नहीं हो. This will be a egg coffee. So मैं यूजुअली इधर के एम्बियंस के लिए आता हूँ. It's cute in a very modern way. एक बार वॉशरूम भी देख लेते. It's pretty tastefully done. मेरे को पसंद है. And it's very clean, so you never feel any kind of icky feeling. It's just nice. ये ladies का है. मुझे जेंट्स में जाना है. I think someone's cleaning in there right now. It's kind of an odd time to be cleaning, but okay. अबे क्या गाना बजा रहे हो? कोई बिल्ली रैंडमली म्याऊ म्याऊ कर रहा है कि क्या गाना है? So I usually come to this corner and I just
take out my laptop or my tablet and I just do something or the other. पहले मेरे पास जो book था, I was reading the book, but मेरा book खत्म हो गया and all my other books are at home, so I'm just reading a PDF, not PDF, I'm reading an ebook. So Henry Miller, egg matcha order किया है, which is not egg coffee, it's not matcha, it's egg matcha. So ये मैं first time try कर रहा हूँ. I know I don't like eggs in my milk, but try करके देखते हैं. अभी एग कॉफ़ी तो पसंद नहीं आया. इनका एग कॉफ़ी काफ़ी टॉलरेबल था. मैंने फर्स्ट टाइम the first time I had egg coffee was in Hanoi, which is also where egg coffee originally originates from. उधर भी egg yolk coffee था एक, and it was a very small shop. ये शॉप तुमने जैसे देखा रहेगा अभी, ये शॉप बहुत बड़ा है. The toilet is also pretty clean and it's good. ये एग मच्चा कैसा होगा पता नहीं. I'll be trying it with you guys for the first time. बताता हूँ कैसा है, मीठा है, stupid है, कचरा है, क्या है. Honest review दूंगा मैं, don't worry. So मेरा matcha आ गया है. This is what it looks like. So मेरे को लेफ्ट वाले को राइट वाले में pour करना है and मिलाना है and then you drink it. And look at this. ये गर्म पानी है. It's not hot, it's just warm water है नीचे. And this is by itself. So you pour it in that. चम्मच किधर है? हाँ. So ऐसे एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है. Oh, it's creamy and a little like 10% sweet. It's kind of nice. Oh, okay. It is nice. I actually like that. Pour in some of the green goo. Oops. Oh, that smells very herbal. Oh my god, it's not bad. It's not my favorite thing in the world, but हाँ रे, मैं जब हनाई में भी खाया था ना पिया था एक कॉफ़ी. It was very tolerable. It didn't turn my mood off like the egg coffee in Little Hanoi. उसमें लिटरली मेरे को अंडे का टेस्ट आ रहा था, लाइक रॉ अंडे का मेरे को टेस्ट आ रहा था उनके एग कॉफ़ी में. बट दिस इज जस्ट क्रीमी एंड टेस्ट लाइक matcha. ये अच्छा है. आई वुड रिकमेंड दिस. सो आई एम जस्ट मिक्सिंग इट. नाउ द वे यू हैव इट इज इसको चम्मच से ही खाना पड़ेगा, बिकॉज इतना गाढ़ा है कि इट विल बी लिटिल वियर्ड ट्राइंग टू. ये चम्मच से ही खाना है. दिस काइंड ऑफ वियर्ड. एक टाइप से अजीब है बिकॉज इट्स अ हॉट बेवरेज एंड लुक एट दिस. It really isn't made for sipping. ये चम्मच से ही खाने के लिए बना है, which is interesting, like a really small baby teaspoon at a time. It tastes really good. It's like matcha, like a matcha latte, hot matcha latte, but it's a little creamy. No, not little, but it's quite creamy and sweet. The sweet is just right. It is just right, just good enough. Oh yeah, there is a slight bitter aftertaste in the end. थोड़ा bitter taste होता है because the matcha I poured in all of it. So starting में थोड़ा sweet and creamy, then it ends a little bitter. So ठीक है. अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया. ये चीज़ भी दिया है. I don't know what this is. Oh, I don't know matcha के साथ मतलब ट्रेडिशनल matcha के साथ ये फनी सा चीज़ क्यों देते हैं पता नहीं. वो लोग भी ऐसा ही एक छोटा ग्लास. It just tastes like foot fungus. I'll be very honest. ऐसा लगता है किसी ने मोजा लिया है पुराना और उसको बस
उबाला और उसका चाय बनाते हैं. इट टेस्ट्स वियर्ड एंड बैड. ये वैसा नहीं है. दिस हैज़ अ स्मॉल हिंट ऑफ कॉफ़ी इन इट. थोड़ा हल्का सा कॉफ़ी का फ्लेवर है. एंड आई डोंट नो व्हाट द अदर थिंग इज, बट इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी का फ्लेवर. इट्स अ वेरी वाटर्ड डाउन थिंग. So it's not rich in flavor. It's very watery and this slight hint of flavor of coffee. It's alright. It doesn't offend the senses, unlike that foot fungus tea. That thing is awful. एक बार इनका मर्चेंडाइज भी दिखा देता हूँ क्या देते हैं. मर्चेंडाइज क्या होता है, इधर फ्री में पानी मिलता है, विच इज़ सो नाइस बिकॉज अदरवाइज जिधर भी जाओ पानी का पैसा देना पड़ता है. एंड दैट गेट्स वेरी अननोइंग. So let me just walk over, walk. So the t-shirts मिलेगा, and you can actually buy these sets. The prices are written over there. So if you're interested, you can buy the stuff. मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ. ये टोट बैग्स वगैरह भी तुमको वो लोग एग्जैक्टली ये वाला नहीं देंगे. ऊपर स्टोरेज है, वहाँ से निकाल कर फ्रेश पीस देंगे. देन दे हैव इंस्टेंट कॉफ़ी. आई डोंट नो हाउ दे हैव इंस्टेंट मिल्क कॉफ़ी, इंस्टेंट क्रीम कॉफ़ी. इसमें अंडा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम. लेट मी जस्ट हैव अ लुक. इसमें अंडा है क्या? If any of you are interested, just screenshot this and get it translated because मैं तो नहीं पढ़ पा रहा अभी. What the hell? VR क्या है सर? तुम लोग पढ़ लो भाई. मैं मेरे को इंटरेस्ट. But yeah, so this is actually amazing packaging. I like it. Packaging मस्त है. ये blue वाला देखते हैं. Design is lovely. I love it. Friendly is the simple design principle that Agio adopted. Okay. अच्छा, इनको डिज़ाइन ब्रांड डिज़ाइन अवार्ड भी मिला है. हाँ मैं बोला ना, द डिज़ाइन इज नाइस. मैं जब हनोई में था तभी मैंने ये सब नहीं देखा था. आई डोंट थिंक दे हैड दिस फॉर सेल. आई डोंट क्वाइट रिमेंबर. मैं एक बार ही गया था उनके दुकान में बिकॉज आई डिडंट गो सेकंड टाइम बिकॉज मेरे को कॉफ़ी पसंद नहीं था. 180 for 200 grams. Okay, let's see. 180 for 200 grams. Okay, let's see. बाय द वे इधर एक और चीज़ है जो मेरे को यूनिक लगा तो सोचा दिखा देता हूँ. सो ये फिन तो सबको ही पता है. कॉफ़ी बनाने का एक तरीका है. दे यूज दिस थिंग कॉल्ड अ फिन. बट व्हाट मेक्स दिस इंटरेस्टिंग इज ये पूरा सिरेमिक का यानी हैंडमेड है. सो पूरा सिरेमिक है ब्रो. लाइक मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा. पूरा हैंडमेड है. सो यू कैन सी इट इज इम्परफेक्ट एज वेल. ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ. मतलब मैंने मेटल का देखा है हमेशा. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ फिन आई एम सीइंग जहाँ मटेरियल ही कुछ अलग है. हेलो, इट्स द नेक्स्ट डे एंड मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है. आई जस्ट हैड माय ब्रेकफास्ट एट लिटिल हनोई. और अभी जा रहा हूँ मैं एक्चुअली चीज़ कॉफ़ी जा रहा हूँ. एंड देन मुझे ला कैफ जाना है. मुझे ये कॉफ़ी शॉप एक बार ट्राई करना है बट नॉट टुडे बिकॉज दिस कॉफ़ी शॉप मुझे ये एक बार ट्राई करना है. एंड देन दिस द बैंड कॉफ़ी विच इज़ बिहाइंड दिस पब्लिक टॉयलेट. उधर एक बार जाके मुझे वो कॉफ़ी भी ट्राई करना. मैं बहुत दिनों से वो कॉफ़ी शॉप देख रहा हूँ बट कभी ट्राई नहीं किया. बट नाउ इज़ द नॉट नाउ बट टुमारो और डे आफ्टर probably बैंड कॉफ़ी एक बार जाता. सो आई जस्ट क्रॉस ओवर 1 second. सो इसके बारे में बात कर रहा था. इधर मैं कल जाऊंगा, आज तो नहीं जाऊंगा. कल बुक माई ग्रैब एंड मेरे को फिर चीज़ कॉफ़ी पे लेके जाता हूँ मैं. कुछ भी बोल रहा हूँ. मेरे डायलॉग से बोलते सीधे. चलना एंड बात करना थोड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए. दोनों
दोनों में कोई एक चीज़ में फकअप कर देगा, इतना मेरे को पता है। यार ग्रैब के लिए वेट कर रहा हूँ, काइंड ऑफ गर्म हो गया है। फील्स लाइक 29 28 डिग्रीज, आई डोंट नो। लाइक मैं थोड़ा सा क्या चल दिया, मेरे को पसीना आ रहा है। सो इट्स नॉट बैड स्वेट बट आई एम स्वेटिंग नॉनदलेस। ये पीछे पब्लिक में कैराओके कर रहे हैं, विच इज वन ऑफ द फेवरेट पास टाइम्स। इनको अपना कैराओके बहुत पसंद है। इट्स काइंड ऑफ क्यूट एंड स्वीट, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं बस, अच्छा है। इधर ही किधर एक चर्च है ना, हाँ देयर इज द चर्च, देयर इज द चर्च। क्या नाम है मैं भूल गया, बट मैं कभी गया नहीं अंदर। बैंड कॉफी कोई है ही नहीं प्रैक्टिकली, दो लोग ही दिख रहे हैं, बाहर दो है अंदर दो है। जस्ट वेटिंग फॉर माई ग्रैब। पश्चिम स्ट्रीट जाते हैं, चीज़ कॉफ़ी उधर का ट्राई करते हैं फिर से। आई मीन मैं तो पी चुका हूँ, मैं अभी तीसरी बार पीने वाला हूँ, बट आई जस्ट शो द प्लेस बिकॉज द प्लेस हैज़ द शॉप हैज़ अ वेरी यूनिक वाइब। वहाँ का फर्नीचर, वहाँ का डेकोर, वहाँ का एम्बियंस इंटरेस्टिंग है। सो आई फील एक बार यूट्यूब पे तो इसको डालना ही चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। Yeah. Okay. Come on. Thank you. Oh, yeah, cheese coffee. Ah. Xin chào. I want a cold bak siu with bun flan. Milk coffee. Yeah, milk coffee. Plain. Bun flan. Yeah, sorry, milk coffee. So, Medium size. so it's not called a bak siu. It's called milk cafe. Okay. Okay. Thank you. By the way, उससे मेरे को याद आया, I've been making all of my spends on the card via this Fi debit card, so इसका भी एक referral link या जो भी रहता है, I'll just add it in the ultra wide. Looks kind of ominous, but let's go. So मैं इसके बारे में बात कर रहा था। There is a lot going on in terms of decor. यहाँ देखने के लिए है काफी कुछ है। So we just start with this. We have these vintage books. I don't know, artificial plants है. Is it a real peacock? Is it taxidermied? I don't know. देखने में मस्त है. More sitting place. बहुत लोग हैं आज. अरे ये क्या है? So this is a cafe which is supposed to be paying honor to Louis Pasteur himself.
So uh, the decor includes some scientific apparatus. For example, इधर आता ये सब है. I don't know ये क्या elements है or these even real things, but इन्होंने ऐसे डेकोरेशन के नाम पे रखा हुआ है. ये सब रियल लग रहा है मेरे को, but I don't know about the rocks. So yeah, just come here, grab a coffee, especially the milk coffee मेरे को पसंद है वो बहुत. पता नहीं मूड में नहीं हूँ, फ्लो में नहीं हूँ मैं. उतना इंटरेस्टिंग कमेंट्री नहीं कर रहा, बट ये दिस इज़ द अपर फ्लोर. नीचे का ज़्यादा कुछ सीटिंग एरिया है नहीं, आउटडोर सीटिंग भी है, बट आई डोंट प्रेफर दैट. इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको मैंने लास्ट टाइम भी उंगली किया था, बट आई डोंट नो. I really want one of these old landline phones. ऐसा नहीं, I want the type they have in the police station जैसा रहता था पहले, वैसा चाहिए मुझे. I'll just grab this seat. So इधर का सिस्टम भी वैसा सेम ही है, just like Footlong and Highlands and Changnuyan. ये ऐसा ये डिवाइस देते हैं तुम्हें. इसमें एक नंबर रहेगा. It will start beeping and ringing and vibrating once your order is ready. Pretty straightforward. As you can see, this is a rather dimly lit cafe. So रात को तो ये और भी ज़्यादा डिम होता है. अभी खिड़की से सनलाइट आ रही है तो you can see the floor and some reflections. But typically evening में ये काफ़ी cozy, warm lighted cafe बन जाता है. So maybe not the best place to be working on a laptop, and if it's dark and stuff. Might be bad for your eyes, but coffee is great. I love the ambience. Yeah, this is one of the more noisier cafes. यहाँ पे मैं कभी भी जब भी आया हूँ, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो. नहीं, सुबह तो कभी नहीं आया, बट हाँ दोपहर एंड शाम में जब भी आया हूँ मैं, this place has always been this kind of noisy, like there's always groups of people that are talking. थोड़ा Footlong जैसा vibe है where कभी शांति होता ही नहीं इधर. So इसलिए I prefer the other cafes also, where which are the other cafes? जैसे Kia Octo हो गया, Cam Coffee हो गया, La Caf. That's why I prefer these cafes as well, because शांति है यार. काम करने में, फोकस करने में बहुत हेल्प होता है ऐसा कैफे, वैसे कैफ़े में. ऐसे कैफ़े में कॉफ़ी अच्छा है, बट देन एम्बियंस भी अच्छा है, बट इट गेट्स नॉइजी. देयर्स टू मेनी पीपल. आई जस्ट कांट फोकस एट टाइम्स. एक और चीज़ मैंने अब नोटिस किया कि मैंने जब बैक्सी का ऑर्डर दिया था, सो द स्टाफ मेंबर, द लेडी वाज लुकिंग एट मी विद अ वेरी वियर्ड फेस कि मैंने ऐसा क्या ऑर्डर कर लिया है, इसको पता ही नहीं क्या है. तो उनके मेन्यू में जो मैं मिल्क कॉफ़ी जो मुझे बहुत पसंद है, उसको वो लोग बाक्स्यू नहीं बोलते. दे कॉल इट जस्ट cafe sera, which is just milk coffee. But then there is marble bakshu. So वो उसने ऐसा तोबड़ा बनाया जैसे कि उसको बाक्सो ही पता नहीं क्या है, एंड इधर मिलता ही नहीं है सर. बट इधर तो एडवर्टाइजमेंट है उसका, सो आई डोंट नो वो कंफ्यूज्ड क्यों थी. So it has started beeping and lighting. तो मेरा ऑर्डर रेडी हो गया है. एंड बाय द वे आई जस्ट रियलाइज्ड देयर इज आवर गाय लुई पास्टर.
ये कुछ नया पैकेजिंग है, पहले नहीं देखा मैंने. They give you a spoon because there's a bun flan inside. उसको तुम पी नहीं सकते. वो pretty much एक softer मीठा पनीर के टुकड़े जैसा है. दिखा था actually. बट मैं दिखा सकता हूँ कि नहीं. Looks fantastic. Yeah. So that there is the bun flan. It actually looks like caramel custard. अरे हाँ, थोड़ा बहुत custard जैसा consistency है, but it's more between somewhere between custard and paneer. You could, I would literally say it tastes similar to caramel custard, but it is much softer, but not as soft as caramel custard itself. आज कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बना है. मैंने कुछ अलग मंगा लिया क्या? स्की माखा. कॉफ़ी फेल ऑन माय पैंट. फकिंग कॉफ़ी स्टेट निकालने में भी जान निकल जाएगा. सालों ने नैपकिन क्यों नहीं दिया मेरे को? बनाया अच्छा है आई गेस. थोड़ा कड़वा है आई थिंक, या फिर मैं बहुत दिनों से चीनी खा रहा हूँ. सो मैं चीनी से सेंसिटिव. लाइक आई नीड more chini to feel the chini, I guess. Because when I had it the first 2 times, it was weeks upon weeks ago. मेरे को तभी मीठा लगा था. मैं काफ़ी हफ्तों से रेगुलरली थोड़ा बहुत तो चीनी खा ही रहा, दिन में 1 बार 2 बार. जबकि मैं इंडिया में जब था, एंड इवन व्हेन आई केम ओवर हियर 1 month into coming over here, I was not having any sugar here as well. But along the way मेरा दिमाग खराब हो गया. I'm like इतना डाइट and I just normally started having sugar. Not that I really like sugar. वो मीठा खास पसंद है. I'm stating this again. Where have I seen it before? इसको ही तो देखा है मैंने पहले. I can't remember. कहाँ देखा है इसको, मेरे को याद नहीं आ रहा है. Wait, is she the paper plate girl? The pizza girl? को याद नहीं आ रहा. Okay, bun flan with the coffee. Yeah, man, that's the stuff. थोड़ा bitter coffee. I think it's robusta. हाँ, by the way, वियतनाम में रोबुस्टा ही चलता है मेजॉरिटी. एंड रोबुस्टा, माय गुडनेस, भाई रोबुस्टा. रोबुस्टा इज द रियल डील ब्रो. इसको पी के तुम्हारा छाती पे बाल आ जाएगा, लंड खड़ा हो जाएगा. यू नो, इट्स pretty strong coffee, man. Like damn. अरेबिका है. मैंने ऐसा तबड़ा बनाया था एक बार कॉफी वर्कशॉप में. एंड वाज लुकिंग एट मी लाइक, ऐसा क्यों कर रहा है बे? उसका ऑफेंड हो गया कि लाइक मैं अरेबिका को घटिया चीज़ जैसा ट्रीट कर रहा हूँ. पर कम ऑन मैन, रोबुस्टा पीने के बाद कान गो बैक टू अरेबिका. वो फनी सा रेड कॉफ़ी चेरी का चाय है ना, वो चाय भी पी के देखते हैं. एक बार ही पिया था सैंपल मैंने. आई थिंक ठंडा था. साला एक कॉफ़ी स्टेन एक बार निकाल गया था. लेट मी जस्ट ट्राई रिमूविंग इट. अरे उससे मैं आई जस्ट नोटिस्ड यहाँ का टॉयलेट में कभी गया नहीं इधर का. बट एक्चुअली शुड हैव अ लुक एट इट, बिकॉज बाकी सब तो इतना अच्छे से टेस्टफुली किया है. तो ये वॉश बेसिन बहुत अच्छे से बनाया. आई लाइक इट. दैट्स वेरी स्मूथ फ्लोइंग वाटर. एकदम रीगल सा है. आई लाइक इट. आई डोंट नो वॉशरूम में कोई है क्या. हाँ, कोई है अंदर. एंड इट्स गॉट दिस ओल्ड फैशन टॉगल स्विचेस फॉर योर लाइट्स.
अच्छा, जब तक मैं कॉफ़ी पी रहा एक स्टोरी बता दूँ. सो आई फाइंड दिस वेरी फनी. तुम लोग भी मेरे को बताओ व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस. सो मैं जिधर रह रहा हूँ इट्स एयरबीएनबी, और इधर क्या हुआ कि द गर्ल हु क्लीन्स माई रूम शी इज़ 20, और उसका और मेरा केमिस्ट्री बहुत है. हम लोग बात बहुत करते थे. स्टार्टिंग में बकचोदी था बहुत. Instant chemistry है. So it is nothing romantic or anything. उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है. बट द थिंग इज कि 31st की रात थी, और मैं तो बस बाहर भटक रहा था रात को. यहाँ वहाँ इम्पोर्टेंट जगहों पे जा रहा था. एंड आई वाज जस्ट इन द क्राउड और समथिंग. तो 31st का रात हो गया, एंड देन आई मेट हर स्ट्रेट अवे ऑन द 4th ऑफ जनवरी. और फिर 4th ऑफ जनवरी को क्या हुआ, आई डिसाइडेड कि चलो ये टाइम इसका मेरा इतना टेक्स्ट चैट पे इतना टाइम पास हो रहा है, तो आमने सामने बैठ के ही बात करते हैं. सो मैंने उसको बोला कि लेट्स जस्ट डू अ लैंग्वेज प्रैक्टिस. तो फिर वो और मैं बैठ के लैंग्वेज एक्सचेंज करने लग गए लॉबी में. उसकी मम्मी भी उधर ही काम करती है ना. आई मीन इट्स अ फैमिली रन बिजनेस. सो while her mother is behind us, she is walking around here अंदर काम वाम कर रही है. उसकी सिस्टर भी कहीं तो है, उसका भाई भी कहीं तो है. तो हम लोग बस लॉबी में बैठ के ऐसा सीरियसली ट्राई कर रहे थे. आई वॉज एटलीस्ट फ्रॉम माई एंड आई वॉज ट्राइंग वेरी सीरियसली टू प्रोनाउंस द वियतनामीज वर्ड्स एंड दिस एंड दैट. बट ओ माई गॉड क्या डिफिकल्ट है. बट उस लड़की में बहुत चुल मची. उसको उसमें बहुत खिचड़ी है. उसको मतलब उसको बकचोदी पेलना ही है बस. तो हम लोग जब बैठे थे, हम लोग जब क्लास कर रहे थे अपना, उसको बहुत मैसेजेस आने लगे. एंड अपेरेंटली दिस मैसेजेस केम फ्रॉम दिस ऑस्ट्रेलियन गाय. ऊपर एक ऑस्ट्रेलियन बैचलर था. एंड क्या हुआ कि वो उसको लगातार मैसेज किया जा रहा है. एंड बड़े अधीर बधीर से मैसेजेस कर रहे हैं. टू बी फ्रैंक आई फेल्ट दिस गाय इज हेलुसिनेटिंग, या फिर कोई ड्रग्स वग्स करके बैठा है पता नहीं. सो वो बोल रहे हैं कि उसके रूम के बाहर लोग है, वो लोग हल्ला कर रहे हैं एंड दिस एंड दैट. There are people who are outside his window. They try to climb into his apartment through the window. तो कुछ अधीर बधीर से मैसेजेस कर रहा था, which was making no sense. And this girl also, she checked her phone कैमरा पे कि क्या हो क्या रहा है. तो कैमरा पे दिखते हैं कि कोई नहीं है रूम के बाहर. सो उसको कहाँ से लोगों के आवाज़ें आ रहे हैं, कौन रूम के बाहर खड़ा है, ऐसा कुछ है ही नहीं. एंड ऑब्वियसली खिड़की से कोई चढ़ के तो आ नहीं सकता. These guys like on the 6th, I don't know what floor he was, but he was pretty high off the ground. So खिड़की से तो ऐसा अंदर आ नहीं सकता. And then फिर बोलता है, one of the messages he sent was, okay, if you don't believe me, come upstairs and check. Now this girl, she started showing me the chat history with the guy, and it has become very apparent कि the guy likes her. And इसने तो उसको सीधा सीधा बियर के लिए भी पूछा था. The guy asked her out for beer straight away. उसने हाँ, यार ये लड़की भी क्या बोलूँ मैं, वो भी हाँ 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 बोल देती है अच्छे से. हाँ लेट्स गो. एंड देन न्यू ईयर्स ईव पे बंदा ऐसा मैसेज भेजता है कि यार मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तो मेरे को फायरवर्क्स देखने के लिए कोई है नहीं. तो द गर्ल सेज ओके आई विल कम विद यू. आई एम लाइक साला क्या, व्हाई गोइंग विद दिस गाय, डोंट इवन नो हिम. बट इवेंचुअली ये लोग गए नहीं बिकॉज शी गॉट बिजी. आई डोंट नो, शी जस्ट डिडंट एंड अप गोइंग विद हिम. उसको टाइम नहीं मिला. फिर the thing which I found most bizarre about this whole exchange is that एक तो इसका बॉयफ्रेंड है, एक तो ये इस आदमी को जानती नहीं. he's just some guest who has been staying there for a few days. The bizarre thing is I told her that ये बंदा बड़ा weird behave कर रहा है my friend, तेरे को अपने मम्मी को बताना चाहिए. तो वो बोलती है कि इसके मम्मी ने ही अप्रूव किया था that she should go with him to see the fireworks on New Year's Eve. What? Why would you send your daughter with some random guy whom both of you don't know? Like that struck me as very bizarre. For a moment, I felt as if like she's some extra add-on with the Airbnb. Like, ये मेरी बेटी भी आती है इसके घर, जाऊँ इसके घर. Like what? That felt very wrong, man. That felt very wrong. Like ऐसे कैसे उसके बेटी को ऐसा भेज सकते किसी के साथ. मैं भी अकेला था New Year's Eve पे. I also wanted to be with somebody. I thought इसको पूछूंगा, but I knew for certain कि अपने फैमिली के साथ रहेगी. इतना बड़ा फैमिली है by the way.
there was certain she would be busy with family, तो मैंने उसको पूछा भी नहीं. But this whole thing about just you know, oh, just go with this guy. We don't know him, you don't know him, but you know, just what? Why? Why would you do that? It's so inappropriate. पर से बॉयफ्रेंड भी उसको, so I don't know why they would. एंड फिर क्या हुआ उसी रात को ये सब जब मैसेजिंग हो रहा था बैक एंड फोर्थ एंड फुल स्टूपिडिटी हो रहा था. सो द होस्ट इज अ डिफरेंट लेडी हु हैपेंस टू बी द सिस्टर ऑफ दिस गर्ल. द होस्ट सेड टू द गर्ल दैट ठीक है ये बंदा वियर्ड बिहेव कर रहा है, ही वांट्स यू और समथिंग प्रॉब्लली, सो स्टॉप मैसेजिंग हिम, इग्नोर हिम. तो वो लड़की में इतना सेंस भी नहीं है. शी इज 20, so she's not very matured apparently. So she's asking me ki, is it okay if I just ignore his messages? I said yeah, like you can totally ignore his messages. Why do you have to think so hard? But then she says, but he's a guest, and I kept hearing this term again and again, that he's a guest. So इसको क्या सिखाया है मेरे को पता नहीं, but apparently a guest is some VIP person जिसको बहुत ही exceptionally well treat करना है. I'm like, you don't go above and beyond your boundaries, man. ऐसा नहीं करने का. But मैंने तो उसको सीधा सीधा सुना दिया ऐसा ही टेक्स्ट चैट पे कि देख भाई मेरे को पता नहीं कोई और क्या बोलता है, but you cannot be going out with some guy you don't know at all. I don't know. I don't care. You just can't do that. It's just not appropriate. मैंने उसको सुना दिया सीधा सीधा. और फिर अगले सुबह क्या होता है, the guy checks out on the Airbnb. So apparently he was very paranoid and whatever, and वो बस अगले दिन चेकआउट कर दिया. And the girl is stressed because उसको लगता है उसके वजह से चला गया. तो मैंने उसको थोड़ा चिढ़ा भी दिया, वाह तूने उसको डरा के भगा दिया. तो वो लड़की भी तब इन सब बातों पे वो चिढ़ गई कि मैं उसको थोड़ा चिढ़ा रहा हूँ इस पर. तो अभी वो बट हर्ट होके मेरे से बात नहीं कर रही है और मैं भी उससे बात नहीं कर रहा कि कम ऑन मैम, मैं तो बस ब्लंटली बता रहा हूँ जो जैसा है. यू नो, आई थॉट यू आर फ्रेंड्स, कि मैं तेरे को ऑनेस्टली ब्रूटल ऑनेस्टी दे सकता, बट वो बट हर्ट हो गया यानी उसको बात नहीं करना. ठीक है, बड़े 20-year-old they are like that. 20 years old, मैंने वेरी एक्सपीरियंस वालों कैसे ही बिहेव करते हैं. So but yeah man, don't send your daughter out with some random stranger like that. Come on. By the way, I may or may not have seen that Australian guy because the very same night जब ये टेक्स्ट पे बैक एंड फोर्थ हो रहा था वो लड़की का और उस बंदे का मेरे सामने, after she went away to bed, I was still there in the lobby. I was just chilling and eating food and just watching YouTube or something. And I remember a Caucasian guy coming down, and this guy didn't look well. I felt like ये बंदा, he was very deer in the headlights. His eyes were very deer in the headlights. He was like this. बिल्कुल ऐसा ऐसे ऐसे देख रहा था सब तरफ, और he was bare feet. So I don't know why he came down to the lobby bare feet. He was in his shorts and a t-shirt. तो थोड़ा अजीब है, like he was behaving weird. He was just looking around, scanning for something. He didn't find what he was looking for. Then he went up the stairs. He came down by the lift. Then he went up by the stairs. I don't know what floor he ended up going on to, but I don't know what he was doing. I'm guessing that was the same guy who was hallucinating or being delusional and talking nonsense. Probably the same guy. I don't know. बस मैंने तो अपना बन प्लान कॉफ़ी ख़त्म कर दिया है. लुक्स, अरे बाप रे. चलो भाई मैं तो निकल रहा हूँ. लकाफ जाते हैं, थोड़ा वीडियो बनाते हैं, उधर ही वीडियो एडिट भी करते हैं. मैं शाम तक प्रॉब्लली उधर ही रहूँगा. लेट्स गो. चलो फिर अभी चीज़ कॉफ़ी से निकल के लकाफ जाते हैं. अरे ऑन द वे आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट, just wanted to point out, अरे यार एडजस्ट कर दो. या आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट, वहाँ पे एक और अच्छा कैफ़े है. इट्स कॉल्ड एवरी हाफ कॉफ़ी एंड रोस्टर्स. मैं एक बार ही गया था, मुझे कुछ एकदम स्पेशल नहीं लगा, बट इट डज हैव अ सर्टेन चार्म एंड वाइब, सो यू माइट वांट टू चेक दैट आउट. मेरे को पर्सनली कुछ पसंद नहीं आया उतना, but it has a certain different atmosphere, and it is also again a chain of coffee stores because एक से ज़्यादा है. मैंने अब तक टोटल 3 देखे हैं, every half coffee roasters. So and they're usually in very good areas. ऐसे कोई
यू नो टेरेबल लोकेशंस पे नहीं है, सो आई एम गेसिंग हाई बजट कॉफ़ी चेन है। ये कौन सा बिल्डिंग है रे? पता नहीं कौन सा बिल्डिंग है, बट हाँ, सो आई हैव लेफ्ट चीज़ कॉफ़ी। आई एग्जिटेड चीज़ कॉफ़ी, टुक अ राइट, आई एम गोइंग डाउन दिस रोड। यहाँ पे एक दुकान है ऑन द वे, वो भी आई वांट टू हाईलाइट दैट बिकॉज वहाँ से मैंने कुछ खरीदा अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टाफ एंड आई वाज thoroughly satisfied, so एक बार वो भी दिखा देता हूँ। दिस एरिया इज ऑल्सो नाइस, यहाँ पे चीज़ कॉफ़ी है बाजू में, फिर ये दुकान है एंड सामने लकैफ है। um, hey doggy, मेरे को अपना सेल्फी स्टिक बड़ा ऑड वे में पकड़ना पड़ रहा है बिकॉज द डैम थिंग वाइब्रेट्स एवरी टाइम आई टेक अ स्टेप। Probably have to buy a higher quality selfie stick. There's some dogs छोटे, by the way Milwaukee, you want to buy good quality tools, Milwaukee इधर है। मैंने इधर से तो नहीं लिया है, but I bought my Milwaukee, it was a M12 fuel, I bought that from Thailand. Quality product bro, quality, and cheaper भी है because इंडिया में तो फर्स्टली मिलता ही नहीं है। But how much did I pay for it? It's M12 fuel, one battery, उसमें ड्रिल बिट्स का एंड अटैचमेंट्स का भी बॉक्स था। क्वालिटी टूल्स, हाईली रिकमेंडेड। सो दिस इज द शॉप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जस्ट टेक, इफ यू लुक राइट, इट्स कॉल्ड परफ्यूम बार। यहीं से मैंने अपना ललिक, व्हाट वाज द नेम, ओम्ब्रे नोयर, मैंने इधर से ही लिया। सो इट्स कॉल्ड परफ्यूम बार। सो बार मतलब लिटरली अंदर जाके तुम लोग ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। बाय ड्रिंक्स आई मीन हार्ड लिकर ही है, बियर वियर भी आई डोंट थिंक मिलता है। यू कैन ऑर्डर सम लिकर, यू कैन टेस्ट आउट द सेंस, होपफुली बाय समथिंग। पॉकेट में जाकर का टाइम मत बर्बाद करो, एक बार मैं कर चुका था तो वैसा मत करना। मैंने एक बार फर्स्ट टाइम जब गया था, आई जस्ट बॉट द ओम्ब्रे नोयर फ्रॉम देयर, some musky tobacco, musky नहीं है सॉरी, it's a tobacco and forget what the other thing is in it, but it's a awesome perfume. उसका कोई रिव्यू रहेगा ऑनलाइन? हाँ डेफिनेटली, आई थिंक परफ्यूम हंटर ने उसका एक रिव्यू किया है, सो यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दैट। हाँ, एक लकैफ गया किधर? ऐसा हाँ, लकैफ ऑल्सो कोइंसिडेंटली इज राइट नेक्स्ट टू अ फुकलोंग, सो तुम्हें अगर लकैफ पसंद नहीं आया, जस्ट गो इनटू फुकलोंग, हैव योर टी एंड कॉफ़ी। यूजुअली टी, आई प्रेफर द टी, जैसा मैंने बताया। सो पर 20,000 में कॉफ़ी मिल रहा है। मैंने जब भी चीप कॉफ़ी पिया, आई जस्ट डिडंट लाइक इट, आई जस्ट फाउंड इट टू बी बेटर। मुझे एक नया बैकपैक भी लेना है, मेरा ये गॉड्स, रोड गॉड्स का बैकपैक फट गया पीछे से थोड़ा सा। एक दिन ज़्यादा फट जाएगा एंड थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग आउट, सो एक और खर्चा करना पड़ेगा। जिनरो, जिनरो सोजू राइट? सोजू बधिर चीज़ है, मत पीना। एक साल पहले मैंने पिया था, बधिर सा बेवड़ा हो जाता है इंसान, हॉरेबल चीज़। कुछ भी पी लो, सोजू मत पीना।
So either Fooklonge and just adjacent to it, you'll find one bar, and just next to the bar is La Caf. उधर कैटीनेट भी है. I really don't like कैटीनेट. कैटीनेट का कॉफ़ी एक ऑर्डर किया था. इट वॉज अ मिल्क कॉफ़ी. बहुत कड़वा था. आई डिडंट लाइक इट. एंड चाय के नाम पे उनके पास प्रैक्टिकली कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं. सो मेरे को कैटीनेट तो पसंद नहीं आया. एक बार ही गया था. आई डिडंट लाइक इट. हाईलैंड्स भी 2 या 1 बार गया था. हाईलैंड्स में आई थिंक बन में या ब्रेड वेड जो है वो थोड़ा बहुत डिसेंट है, बट उनका कॉफ़ी मेरे को पसंद नहीं खास. अरे हाँ, हाईलैंड्स में आई जस्ट रिमेंबर हाईलैंड्स हैज़ सो इधर से लकैफ जाते हैं अंदर. आई जस्ट रिमेंबर दैट हाईलैंड्स हैज़ अ स्पेसिफिक टी. मैं एक बार ही पिया था. आई जस्ट रिमेंबर इट्स अ बोबा टी ऑफ सम सॉर्ट. आई थिंक इट वाज अ लोटस बोबा टी और समथिंग. दैट वाज एक्चुअली डिलिशियस. इट वाज हर्बल टेस्टिंग, फ्लोरल टेस्टिंग, एंड उसमें बोबा था. मेरे को बोबा पसंद नहीं, बट रिमूव द बोबा एंड इट्स अ 10 out of 10. Otherwise, if you had the boba, it's a 9 out of 10. It was really nice, you know. ये आ गया लॉकहाउस. इधर भी एंट्री है, दूसरे तरफ से भी एंट्री है. Sorry. Baksu, please. You will make it. Who will make it? Sierra? Tung? Okay. Okay. अरे इधर इतना आ चुका है, इनके नाम थोड़े बहुत याद हो चुके हैं मुझे. अरे बाय द वे, there's एग्री बैंक. अगर ATM यूज़ करना है तो एग्री बैंक जाओ, या तो MB बैंक. Actually, you know what? Give me the cloudy cold brew. Cloudy cold brew. Yeah. Would you like to take away all? Have you? Yeah, so I was saying, ATM withdrawal करना है तो हमेशा एयरटेल विड्रॉल करना है तो हमेशा एग्री बैंक जाओ या तो MB बैंक. एग्री बैंक का क्या है, दे यू कैन विड्रॉ 3 million विड्रॉ होगा एंड द फी विल बी 22,000. बट इफ़ यू विड्रॉ फ्रॉम MB बैंक में 5 million होता है एंड द फी 66,000. बाकी EIDB मैंने ट्राई किया है, वो मेरा कार्ड उस पर चला नहीं. Weird in बैंक है बट 2 million का लिमिट है. नॉट रियली गुड. सो इफ यू रियली वांट टू withdraw money, I mean you will need to withdraw money. I mean काफ़ी इधर कैश पे काफ़ी कुछ अभी भी बिजनेसेस कैश पे चलते हैं. सो हाईली रिकमेंड एग्री बैंक या तो MB बैंक. हम लोग अभी इधर से आए थे. एंड दिस हियर इज कॉफ़ी रोस्टिंग मशीन. जब कॉफ़ी क्लास लेते हैं तो इधर लाइव रोस्टिंग होता है. दे ब्रिंग यू डाउन हियर, दे शो यू सैम्पल्स ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉफ़ी बीन रोस्टिंग. 5, 6, 7 पता नहीं, काफ़ी स्टेजेस होता है. एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज इन्होंने अपना लोगो का ब्रांडिंग करके रखा है इस मशीन पे. दिस इज़ द ब्रांड लोगो. आई डोंट नो व्हाट इट इज़. इट्स अ फ्लावर ऑफ सम सॉर्ट. फिर ये सब मर्चेंडाइज है. यस, तो मैं इसका बात कर रहा था. इनका ये लकैफ का फिन फिल्टर है. एंड व्हाट मेक्स दिस डिफरेंट इज़ कि एक तो नीचे का जो प्लेट है एंड जो ऊपर का बोल पीस है, दे आर अटैच्ड, दे आर वन पीस. टिपिकली ये लोग सेपरेट पीसेस होता है. एंड द अदर थिंग इज द फिल्टर. इट्स अ फाइन फिल्टर. जैसे मैंने सिरामिक का बताया था फिन फिल्टर,
you will notice that उसमें holes बड़े थे and there were fewer of them, but इसमें holes छोटे and they are numerous. So ये कौन सा है? अरे तो ग्राउंड कॉफ़ी है ये। मैं अपने फ्रेंड के लिए लाया था। ही हाईली रिकमेंड्स दिस। मैंने टेस्ट नहीं किया है बट मैं उसके लिए 1 किलो लेके गया था इंडिया। इट्स 85% रोबूस्टा, 15% अराबिका। एंड एक और चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है इज वेयर द चेरी। The cherry is this one. दिस वन। ये से कॉफ़ी बीन, आई मीन कॉफ़ी बीन एसेंशियली एक चेरी है तो उसका वो स्किन है एंड स्किन का ये स्किन बेचते हैं। सो व्हाट यू डू विद इट इज यू बॉयल इट एंड इससे एक रेड कलर का पानी बनता है। यू हैव टू बॉयल इट इन वाटर। सो इंटरेस्टिंग टेस्ट है। इट्स स्वीट, सावर एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू पुट इन उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कमेगा। ये लोग Mori Farm, Arate, Sanya, Nyok. So these are the coffee farms जहाँ से ये लोग coffee लाते हैं. So unlike some of the other coffee shops I mentioned, ये coffee shop अपना beans in specific farmers से लेके आता है. You bring your beans from these farmers, right? Yeah, all the farmer here. Okay, okay. Yeah, so each of them will in different products. So one product will be 2 to 3 of them coffee bean. So you will always have this one branch, or will you have more in the future? Maybe just this one brand. Okay. Who's the owner? Is he here? I know our owner is from Netherlands. Netherlands. You will see him sometime. He will go back from the office nearby. He very tall. He like 190 meter, and he have like a orange pale color. And you will recognize him. Okay, ladies. Oh, thank you. I'll show you मैंने ये कौन सा कॉफ़ी ऑर्डर किया था। मैंने ये ऑर्डर किया है। You can look at the ingredients. Most interesting one being oat milk. So ये vegan है if you're into that. Nhưng mà bạn cũng đỡ làm quả xong. Nó nói là mỗi lần mà nó để ý nhiều phải xài được 2-3 tháng. मैंने just cascara tea मंगाया है and this is the tea which is made of the skin of the coffee fruit. मतलब coffee bean का जो fruit रहता है, I mean coffee bean का जो skin रहता है. Coffee bean is essentially a cherry, so वो cherry का जो skin है ये उसका tea है and it tastes like a mix of tamarind and dates. So it's sour and tastes quite interesting. I like it. In case you're wondering why they have a motorcycle here, this is an actual motorcycle. I don't know if they use this very one, but ऐसे टाइप के मोटरसाइकिल में ही पहले गांव में ये लोग कॉफ़ी ऐसा बोरी में डाल के लेके जाते थे. सो इट इज़ जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओल्ड टाइम्स. या फिर अभी भी ये लोग ऐसा करते हैं. हाँ, मेरे रिमोट एरियाज़ में करते रहेंगे ऐसा. So they used to carry their coffees on a motorcycle like this.
पे कुछ लिखा है. Oh no, okay. Okay, this signature cold brew is you just pour this thing in a glass, add some ice, and you have a signature cold brew coffee. I don't know how this works. अगर पहले से drink बना के रखा है, then I don't know what kind of concentrate this is. Okay, here's ये रहा Cascara tea. Well, मैंने तो अपना opinion दे दिया. To me, it tastes like it is made of tamarind and somewhere it's like a mix between tamarind and dates for me. That's how it tastes. So definitely a sweet tasting experience, but थोड़ा sour a bit. So it's kind of interesting. Espresso blend. जिसको भी पढ़ना है ये वीडियो पॉज करके पढ़ लेना. So I think last time मैं ये वाला लेके आया था, but I've not tried it. मैंने एक फ्रेंड के लिए लेके आया था. इस बार मैं I think ये वाला लेके जाऊँगा. I think he wants the blue one. ये वाला. यहाँ पे खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, so just एक बार दिखा देता हूँ. ये फ्लान, ये जो चीज़ कॉफ़ी में खाता बिल्कुल वैसा ही है. ये तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है. Honeycomb cake is good to serve it with some cream. एक चीज़ तो मैं दिखाने भूल गया, which is the honeycomb cake at Lagaf. It is not literally made of honey, or it is nothing. It's not actually a honeycomb, but just let me show you. तो ऐसा दिखता है. It's amazing. I need to increase my vocabulary, but look, let's call it delectable. It's delectable, and it's very spongy. Okay, not very spongy, but it is spongy cake, and it comes with this coconut cream, and it has got some seeds in it. I think that is burger पे क्या डालते हैं मैं भूल गया. It's called that seed. So you pour it on like this, then you just dig into it. Let's try it. मैंने केक उल्टा कर दिया. Great. Anyways, so this is the honeycomb cake. इनका स्पेशलिटी है. ये इधर बनता नहीं है. They order it from somewhere, but ये honeycomb cake मैंने इधर ही खाया है. मेरे को और कहीं तो मिला नहीं है. Just one more thing I want to show you quickly. ये honey का बारे में मेरे को दिखाना था. So this is made from the nectar of the coffee blossoms. तो ये it is natural honey, और इसका स्पेशलिटी यही है कि ये कॉफ़ी के जो फ्लावर्स है, कॉफ़ी का जो blossoms है, उसके नेक्टर से बना. सो दे हैव probably got bee farms around these coffee blossoms, and वो लोग कॉफ़ी प्लांट का नेक्टर निकाल के हनी बनाते हैं. दैट इज़ वेरी पिक्यूलियर, वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसा चीज़ कभी देखा ही नहीं लाइफ में. इसका प्राइस क्या मैं भूल गया. इट इज़ इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली. 138. एक लेके देखता हूँ. मैंने नेचुरल हनी खोल लिया है. थोड़ा सा डाल के देखता हूँ कैसा है. कैसे डालूँ मैं. आई थिंक आई माइट प्रॉब्ली पुट मोर देन आई नीड. ओके. तो ये चीज़ नेचुरल हनी है. इट्स वेरी ऑर्गेनिक टेस्टिंग. मतलब मैं जब भी फैक्ट्री फूड खाता हूँ कुछ मेरे को इमीडिएटली फीलिंग आता है, बट दिस इज़ रियल डील बॉस. दिस इज़ द रियल डील. मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा. इसमें एक्चुअली कॉफ़ी का फ्लेवर मुझे आया नहीं कुछ ऐसा, बट इट जस्ट टेस्ट अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल natural honey that I've had. थोड़ा सा different है. There's like a 5-10% some kind of taste in it, which I don't know what it is. That's probably the coffee plant के वजह से इसका taste mildly अलग है, but it is still just natural honey, and
delicious and feels healthy. Just, I recommend this. So that is the end of this current video. और भी मुझे कंटेंट ऐड करना है, कुछ और भी ऐसे छोटे मोटे इंटरेस्टिंग कॉफ़ी शॉप्स मिले हैं मेरे को, उसके बारे में भी ब्लॉग में ऐड करूँगा बाद में. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड इसके बाद also there are some stores that I've visited, especially toy stores. So if you're interested in Gundam, RC cars, if you're interested in any other hobby like Hot Wheels and Tomica miniatures and वो सब, तो उसके ऊपर भी मैंने इधर व्लॉग बनाया है, उसका भी एडिट करना बाकी है. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. लाइक एंड सब्सक्राइब if you enjoyed this video, and see you in the next one.